Hello everyone, welcome back. Today's lecture about the form accessibility. So here is we studied about the what advanced input types and the features in the HTML5. And in this lecture we will learn how to create forms that are accessible and inclusive for everyone, including the user with disabilities and the accessibility is not just a best practice, it's a necessity. So, firstly, explaining the accessibility features. We will focus on the semantic HTML elements and ARIA attributes to improve the accessibility and enhance the user experience. So, here, firstly, introduction to the accessibility. सो accessibility क्या है हमारे HTML फॉर्म के अंदर एक्चुअली तो accessibility ensures that everyone including you can see here yeah, so accessibility ensures that everyone including users with disability can interact with your website effectively, okay, and in the another hand, accessibility in the HTML forms refers to the designing and developing forms in a way that ensures all users, including those with disabilities, can interact with them effectively. Like I told you before here. So this includes providing proper support for assistive technologies like screen reader, ensuring keyboard navigation actually, and making forms understandable and operable for users with visual, auditory, cognitive or motor impairment. So here key features क्या होते हैं accessible के? So first क्या होता है proper labeling, ऐसे काफी सारे होते हैं. Proper labeling first. Use the label element with for the attribute is associate labels with their corresponding form controls. Okay. Then next क्या होता है keyboard navigation. Actually keyboard navigation क्या होता है? Keyboard navigation is your all about the ensures user can navigate through form using the tab key. किस किस की वजह से टैब की से एंड द एक्टिवेट बटन और लिंक यूजिंग द एंटर या फिर स्पेस की. ऐसे काफी सारे होते हैं बट अभी इतने देखेंगे. आगे नेक्स्ट हम आगे आगे के लेक्चर में धीरे धीरे इम्प्रूव करते रहेंगे, आगे पढ़ते रहेंगे एक्चुअली. सो ये क्या होता है एक नया प्रिंसिपल आया है ये हमारे में, WCAG प्रिंसिपल. सो ये प्रिंसिपल क्या है? यहाँ पे तो हमारे सिंपल कुछ टर्म्स लिखी हुई है. परसिवेबल, अभी जो क्या होता है जो मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन बताया था इसका accessibility की डेफिनेशन बताई थी, उसमें भी कुछ कुछ वर्ड्स थे. ऑपरेबल एक्चुअली क्या है अब ये मतलब काफी से हैवी वर्ड है. क्या एक्चुअली मीनिंग क्या है, प्रॉपरली मीनिंग क्या है पहले हम देंगे. WCAG है क्या एंड देन फिर about these terms. Perceivable, it's an important term. Perceivable, operable, understandable भी हमने अभी पढ़ा था and the robust. So हम पहले देखते हैं WCAG क्या है एक्चुअली, क्यों हम इसमें यूज करते हैं, क्या इसका मतलब पूरा प्रिंसिपल क्या है ये. So पहले हम देखते हैं इसकी फुल फॉर्म क्या है. भैया तो शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है. अब इसकी फुल फॉर्म है क्या? हर शॉर्ट फॉर्म की फुल फॉर्म होती है. तो WCAG की फुल फॉर्म होती है वेब कंटेंट एक्सेसिबिलिटी गाइडलाइंस. ये गाइडलाइंस है कि हमें ये करना है, मतलब प्रॉपर जिसमें रूल्स होते हैं लाइक दैट. यू कैन सी सॉरी यू कैन से द रूल बुक. गाइडलाइंस है कुछ यहाँ पे हमारी. W फॉर वेब, C फॉर कंटेंट, A फॉर एक्सेसिबिलिटी, G फॉर गाइडलाइंस. So it provide a framework. क्या करता है? Framework provide करता है to make the web content more accessible to people with
disabilities. This principle are summarized as for. For जैसे कि निमोनिक्स बना लेते हैं भैया, हम एक्चुअली क्या है ये, तो हमने इसकी निमोनिक्स बनाई POUR. P for perceivable, हाँ राइट. O for operable, U for understandable, R for robust. ठीक है. अब भाई हमने पढ़ लिया प्रिंसिपल है क्या, हमने कुछ इसकी टर्म्स भी पढ़ ली जिसमें पूरा प्रिंसिपल समराइज्ड है. ये कुछ फोर टर्म्स हैं. अब हम पढ़ते हैं कि इस फोर टर्म्स के बारे में एंड देन अबाउट द एग्जांपल. सो फर्स्ट है परसीवेबल. परसीवेबल एक्चुअली है क्या? परसीवेबल इज अ कंटेंट मस्ट बी प्रेजेंटेड in ways that users can perceive regardless of the sensory abilities. डेफिनेशन तो नहीं पढ़ ली, अब हमें सबसे एग्जांपल पढ़ते हैं, देन हम अंडरस्टैंड कर पाएंगे परसीवेबल एक्चुअली है क्या. सो एग्जांपल क्या है हमारा, प्रोवाइड टेक्स्ट अल्टरनेटिव फॉर नॉन टेक्स्ट कंटेंट. जैसे कि इमेज वीडियो, हम टेक्स्ट की जगह अल्टरनेटिव चीज लगा सकते हैं, जैसे कि टेक्स्ट की जगह अल्टरनेटिव चीजें लगा सकते हैं जैसे कि इमेजेस और वीडियोस. सेकंड क्या है, यूज कैप्शन फॉर वीडियोस एंड ट्रांसक्रिप्ट फॉर द ऑडियो. वीडियो के लिए कैप्शन लगा दो भाई, हो गया. और थर्ड क्या है, एग्जांपल है, इंश्योर्स कंटेंट इज असेसिबल वाई असिस्टिव टेक्नोलॉजीज लाइक स्क्रीन रीडर. सो हमने परसीवेबल तो भैया समझ लिया, डेफिनेशन भी पढ़ ली इसकी और इसकी एग्जांपल भी समझ लिया. ऑपरेबल क्या है भाई, ये क्या होता है क्या ये. सो पढ़ता है, ऑपरेबल इज अ यूजर इंटरफेस कंपोनेंट्स एंड नेविगेशन मस्ट बी ऑपरेबल. एग्जांपल देखते हैं, इंश्योर्स और फंक्शनैलिटी इज कीबोर्ड असेसिबल. एंड दूसरा एग्जांपल क्या, प्रोवाइड सफिशिएंट टाइम फॉर यूजर टू इंटरेक्ट विद कंटेंट. ठीक है, तो सिंपल था. थर्ड इज अवॉइड कंटेंट दैट कॉज सीजर्स लाइक फ्लैशिंग एलिमेंट्स. फोर्थ, इंक्लूड क्लियर नेविगेशन एड्स लाइक एस्केप लिंक एंड द हेडिंग. समझ ली भाई, परसीवेबल भी समझ लिए क्या है, एग्जांपल भी पढ़ लिए इसके. ऑपरेबल की डेफिनेशन क्या है, एग्जांपल पढ़ लिए. That's fine. Move on to third topic. Third term actually understandable. Understandable क्या होता है, content at the user interface should be easy to understand. Understandable के word में लिखा हो understandable means समझना, easy to understand. So ये एग्जांपल देखते हैं. यूज अ क्लियर एंड सिंपल लैंग्वेज. ये तो भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज थी. यूज क्लियर सिंपल लैंग्वेज. क्लियर होगी, सिंपल लैंग्वेज होगी तो उससे हम इजिली अंडरस्टैंड कर पाएंगे. दैट्स फाइन. एंड द सेकंड क्या है, इंश्योर्स फॉर्म इनपुट हैव प्रॉपर लेबल्स एंड द इंस्ट्रक्शंस. प्रॉपर लेबल हो, इंस्ट्रक्शंस हो. ओके. द थर्ड वन इज अ प्रोवाइड कंसिस्टेंट navigation and the design must be consistent navigation and that's on. Fourth one is avoid unexpected behavior in the user interface. I think clearing now more with the examples. So fourth one is a robust. क्या है भाई ये भी है. Robust content must be robust enough to work with the various assistive technologies, browsers and devices. Examples are use valid HTML and adhere to coding standards. Second one is ensures compatibility with current and the future technologies. Provide ARAI भी कह सकते हैं, ARAI and roles and attribute where needed. ARAI क्या होता है भाई, हम इसके फुल फॉर्म के पढ़ते हैं, पहले इसके बारे में हम पढ़ेंगे क्योंकि ये हमारा एक नेक्स्ट पूरा प्रॉपर टॉपिक है. अभी फिलहाल मैं फुल फॉर्म देती हूँ आपको. ARAI का मतलब होता है कि accessible reach internet applications. A for accessible, R for reach, I for internet, A for applications.
So here, by adhering to this principle, web content can become more inclusive and usable for all the users. So next is using semantic HTML for accessibility. So using semantic HTML is a fundamental approach to improve the web accessibility. Semantic HTML elements have clear, meaningful purposes which make it like easier for assistive technologies like screen reader, जैसे मैंने आपको पहले बताया, and the browser to interpret and the present content correctly to users with disabilities. अब इसके बेनिफिट्स पर लगता है, आई नो टॉपिक का नहीं है बेनिफिट्स, पर स्टिल एक चीज के बारे में पढ़ना, थोड़ा सा उसको एक्सप्लोर करना चाहिए. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. बेनिफिट्स क्या है इसके? फर्स्ट, इम्प्रूव द स्क्रीन रीडर सपोर्ट. इम्प्रूव स्क्रीन रीडर सपोर्ट. और सेकंड इज कीबोर्ड नेविगेशन. थर्ड इज डिफॉल्ट ब्राउजर बिहेवियर. अब इसका अंदर के बारे में मैं आपको बताती हूँ. मीन्स इम्प्रूव स्क्रीन रीडर सपोर्ट इज लाइक, हाँ, सिमेंटिक टैग क्या है, वो प्रोवाइड करेगा आपको कंटेक्स्ट स्क्रीन रीडर्स and allowing that to convey the structure and purpose of the content effectively. And the keyboard navigation is all about the semantic element enable the proper focus management and intuitive navigation for keyboard users. And third one is the default browser behavior. Semantic elements can come with built-in accessibility features such as the roles and the behaviors, reducing the need for custom solutions. समझ लिया है तो अभी हमने अब semantic मतलब semantic HTML एक्चुअली है क्या, है ना? सिमेंटिक में जैसे कि वो होता है, फुटर हो गया, असाइड, मेन, हेडिंग, ये सिमेंटिक टैग होते हैं, है ना? अब एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ द यूजिंग लेबल. लेबल के बारे में आपको प्रीवियस लेक्चर में फुली डिटेल्ड एक्सप्लेनेटरी एक्सप्लेन किया था मैंने आपको. If you want to see my previous video, then click on the I button and my playlist. Then you can see there. Okay. And if you have any facing a problem, then comment me. I will try the solve all the problems. So here, come back. Explain the importance of the using label. लेबल के बारे में मैंने आपको पूरा बता रखा है. So अभी मेन चीजें पढ़ेंगे. Associated with the form control. So label element explicitly associates descriptive text with the form control, making it clear what information is expected. This association can be established using the for attribute or by nesting the control inside the label tag. Okay. And the हो गया है तो भाई, हाँ या लेबल, हाँ, जस्ट अ मिनट. ऐसे क्या होता है हमारे, जैसे कि हाँ भाई, हमने तो थोड़ी सी मेन सी चीजें पढ़ ली है. अब इसको थोड़ा सा और इसके डीप पे जाते हैं, एक्सप्लोर करते हैं. सो फर्स्ट कहते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ द यूजिंग लेबल. मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट बता दिया, एसोसिएशन विद द फॉर्म कंट्रोल. Then the move on the second point about the importance of using label. Support for the screen reader. Screen reader, your announce the label text. What
announce the label text. When the users focus on the associated inputs field, providing the context and the guidance. It's very important thing कि screen reader support for the screen reader about all things for screen reader. And the third point so improves the click या फिर focus behavior. Clicking on the label automatically focus the associated input field, improving the usability especially for checkboxes and the radio buttons. एक्चुअली ये हमारा फुल ऑन टॉपिक नहीं है, जस्ट लेबल के बारे में जो था मैंने आपको बता दिया. थोड़ी सी ये डीप थोड़ी सी डीप नॉलेज चाहिए एक्चुअली हम इसे कैसे कर सकते हैं. सो हियर अब हम पढ़ते हैं अलग थोड़ा सा इसमें इंपॉर्टेंट क्या एनहेंसेस कीबोर्ड accessibility. Properly labeled form controls make it easier for the keyboard only user to navigate and understand form elements. Compliance with the accessibility standard. The use of label helps meet accessibility requirements outlined in the guidelines like WCAG principle मैंने आपको बताया अभी error identification that move on the syntax here. It is syntax opening the label, then the close it here for email address. Easy था ये तो. Input type email, ID, name email. अब आप पहले इसको देखो कि प्रॉपरली है क्या, बिकॉज एक्चुअली क्या है बहुत इजी सा तो है एक्चुअली टॉपिक, पर स्टिल फिर भी देखो थोड़ा सा. सो हो गया, देख लिया. नेक्स्ट करते हैं हम. सॉरी सॉरी. अब क्या है, हमने वो तो पढ़ लेबल के बारे में. अब पढ़ते हैं ग्रुप रिलेटेड फील्ड्स एंड फील्ड्स विद अ फील्ड सेट एंड द लेजेंड. अब ये है क्या, group related fields in the form using a field set and a legend. I explained in the previous video about the field set and the legend. Fully explained video थी वो मेरी. Now first you can see my the previous video, then here. So कहाँ पे थे हम? हाँ, grouping related fields in the forms using the field set and the legend element is an effective way to enhance accessibility and improve the structure and the readability of a form. This technique benefits all the users, especially those relying on assistive technologies. What are field set and the legend? अब भाई फील्ड सेट क्या होता है, अब हम चलो थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ. फील्ड सेट क्या होता है, ग्रुप्स रिलेटेड फॉर्म कंट्रोल टुगेदर. इट क्रिएट अ लॉजिकल एंड द विजुअली ग्रुपिंग which help user understand the relationship between fields. अब legend क्या होता है, provides a caption or title for the grouped field inside a field set describing their purpose. So अब क्या है, why use fields and the legend? Good question. So field set is actually क्यों हम यूज करते हैं field set और legend को? तो first improve the accessibility. Assistive technology announce the legend text when the users navigate to a group of fields providing context. And then screen readers recognize a grouped field as related.
और सेकंड पॉइंट क्या, बेटर फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन, group related fields for a cleaner and the more intuitive structure. Second is a useful for forms with a multiple sections. Example, personal details, payment information. Semantic meaning क्या होता है, अब adds the clear semantic relationship with improves usability and the compliance with accessibility standards like WCAG. हो गया। अब हमने एक्चुअली थ्योरेटिकल पार्ट इज कंप्लीटेड नाउ, सो देन आई एम एक्सप्लेनिंग द सिंटैक्स अबाउट इट। द फील्ड सेट हियर यू कैन सी, एक्चुअली ओके मैं ऐसे ही बता देती हूँ, कोई बात नहीं। हाँ, नाउ हियर फील्ड सेट इज ओपन, opening here legend the content information, so close it here. Then the label for the name, here name, then close it here. Input type का text है id name, br, label for email, close it है. Input type email id and the close it here. Opening कहाँ थी हमारी, starting में। हो गया। अब पढ़ते हैं, हमने ARI के बारे में एक्चुअली अभी पढ़ा था। Then again I am telling you about the ARI. So ARI क्या होता है, use the ARI to improve the accessibility. और इसकी फुल फॉर्म मैंने आपको अभी ही बताई थी जस्ट, accessible rich internet application, accessible rich internet application. So common area ARI attribute full form है, ठीक है। So first area label here you can see here, हाँ area label। So area label क्या है, it's a provide an accessible name for a form element if a visible label is not present, ठीक है। देन हमारे में था एक्चुअली, होते तो काफी सारे जैसे कि एरिया लेबल्ड बाय एंड एरिया रिक्वायर्ड, एरिया इनवैलिड, बट हमने अभी दो ही कर रहे हैं ये। देन आगे देखते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट है एरिया, जस्ट अ मिनट, एरिया लेबल्ड है हमारे में और एरिया डिस्क्राइब्ड बाय। सो एरिया लेवल क्या होता है, एक्चुअली मैंने आपको अभी बता दिया है। तो एरिया डिस्क्राइब करता हूँ, लिंक्स ऑफ फॉर्म एलिमेंट टू एडिशनली डिस्क्रिप्टिव टेक्स्ट सच एज हिंट्स और एरर मैसेजेस, ठीक है। इनटेक सॉरी सिंटैक्स देखते हैं। इनपुट टाइप टेक्स्ट एरिया लेबल लिखेंगे एंड द फर्स्ट नेम, इनपुट टाइप टेक्स्ट एरिया डिस्क्राइब बाय नेम हेल्प, small id name help, enter your full name small. So best practice for the form design देखते हैं आप एक्चुअली है क्या है। Logical navigation with the tab index attribute, use of the error message, spam id error, style cab color is red, please enter valid email address. So here हमने इसका थ्योरेटिकल पार्ट कंप्लीट कर लिया है। सो मूव ऑन द कोडिंग पार्ट आल्सो, सो demonstrate in the practical example now. So now let's build a fully accessible feedback form actually that includes the proper labels, ARI the attribute and the clear instruction for the user. So guys, open your VS Code. So here my VS Code. So मुझे आपको एक चीज दिखाना जो कल के कोड में थी, वो कुछ नहीं था, तो वो थोड़ा सा सिंटेक्स एरर तो नहीं, तो सर्वर एरर था एक्चुअली, इसलिए वो उधर मैंने आफ्टर कंप्लीटिंग द वीडियो देखा तो एक्चुअली रन हो रहा था प्रॉपर कोड, ऐसा कुछ है। देखो ये हमारा कल का कोड है, यू कैन सी हियर सेम टू सेम, है ना। देखते जाओ, अब ध्यान से देखते रहो, थोड़ा सा मैं इसको रोक देती हूँ कि आप अच्छे से पढ़ पाओ, ठीक है। हाँ सो देखते सेम है हमारा बिल्कुल।
जस्ट अ मिनट। सेव है, बिल्कुल देखते जाओ, है ना। तो ये मैंने गूगल क्रोम था, मोजिला फायरफॉक्स था, रेंज। मैंने फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर रखा है इसलिए थोड़ा लंबी सा। सो अब हम देखते हैं इसको। शो द प्रीव्यू। हाँ, ऐसे ही तो था। अब देखते हैं, ओपन इन द ब्राउजर करते हैं पहले। देन नाउ यू कैन ऑल्सो सी, यहाँ पे हमारा नेम था, है ना। और यहाँ पे था डेट ऑफ बर्थ, फेवरेट कलर, कलर पे करता, रेट कर सकते हैं सर्विस को। देन देखो ये रहा ड्रॉप डाउन मेन्यू, गूगल होम, यू कैन चूज। नाउ यू कैन ऑल्सो एज, ऐसे ही सेम है। हाँ, आगे समझ में। देन आज का कोडिंग बात करते हैं हम पहले। सो कट इट, देन create a file 12th code dot html. Dot html is your extension. तो अब हमें करना था शेफ, तो एक्सक्लेमेशन मार्क देन प्रेस एंटर। अब थोड़े से ना हम चीजों को फास्ट करेंगे, बिकॉज हमने इतना तो हमें अब है ही पता ही, क्यों हम इस चीज में टाइम वेस्ट करें। एक्चुअली कुछ चीजें और सीखने में टाइम कंज्यूम करते हैं। सो टाइटल लगता है असेसिबल फीडबैक फॉर्म। accessible फीडबैक फॉर्म। ठीक है, H1 क्या है? H1 है फीडबैक फॉर्म। फीडबैक फॉर्म, ओके। देन क्रिएट अ फॉर्म। एक्शन में क्या लिखेंगे हम भाई? /submit, I should not you, हाँ सबमिट। देन अब मेथड में डालेंगे, अब क्या डालना चाहिए? पोस्ट ही डालेंगे। पोस्ट में कैपिटल P नहीं आएगा, पोस्ट। देन प्रेस एंटर। अब बनाएंगे हम एक फील्ड सेट। अब बनाएंगे रीजन, पर्सनल इंफॉर्मेशन। पहले हम ये एक्चुअली हमने फॉर्म क्रिएट किया है, बट थोड़ा सा इनपुट टैग लेके किया था। अब हम इसमें लीजेंड फील्ड सेट वगैरह लेंगे, तो टेक्स्ट एरिया तो थोड़ा सा एडवांस्ड होगा। एक्चुअली दिखेगा भी वैसे ही, बट वे ऑफ राइटिंग इज डिफरेंट। इंफॉर्मेशन हो गया। अब बनाएंगे हम लेबल। लेबल हो गया। और फोर किसके लिए? नेम के लिए, ठीक है। नेम लेबल, इनपुट टाइप क्या टेक्स्ट है, आईडी क्या है? नेम है, आईडी नेम है। और नेम भी भाई नेम ही होगा। अब तो ये हमने बहुत बार लिख रखा है, तो आइडिया हो ही गया है। प्लेस होल्डर में क्या आएगा? एंटर योर नेम। रिक्वायर्ड के बाद लिखे एरिया रिक्वायर्ड, ये हमने अभी अभी पढ़ा है जस्ट।
या रिक्वायर्ड लिखते देखो आ जाएगा। सजेशन में हमें मिल गया, ये जो रिक्वायर्ड में ट्रू आएगा। बी आर ठीक है। अब अभी करते हैं, कॉपी कर लेते हैं, दैट्स फाइन, है ना। क्योंकि मैंने आपको बताया था हार्ड वर्क से साथ साथ स्मार्ट वर्क भी आना चाहिए, सो दैट्स वाई ये अब हमने इतना तो हमने सीख ही लिया है। 12th वीडियो बना रहे हैं अब। सो इधर आएगा ईमेल, है ना। ईमेल के लिए ईमेल, ईमेल हो गया। इनपुट में क्या डालेंगे अब, टेक्स्ट ईमेल लिखना है मेरे को, इसमें @ वगैरह अगर हम नहीं लिखते ना तो इसलिए वो दिखाता है कि मिसिंग दी @ आईडी में ईमेल, ईमेल, ईमेल हो गया। देन फील्ड सेट को क्लोज कर दो, अगेन क्रिएट फील्ड सेट, एंटर, लीजेंड, योर फीडबैक, फीडबैक, लेबल फॉर फीडबैक, मैसेज, BR टैग, देन टेक्स्ट एरिया, नेम में क्या आएगा, नेम में आएगा हमारा फीडबैक ही आएगा। फीडबैक टेक्स्ट एरिया, अपने प्लेस होल्डर, योर फीडबैक हियर, योर फीडबैक हियर, ओके। हाँ, नाउ what should I do? Oh, just a minute. कट हो गया एक्चुअली। जस्ट अ मिनट, ये कुछ हो गया। हाँ हो गया, वो एक्चुअली मैंने 0 प्रेस कर दिया था, दैट्स वाई। कोई नहीं, नई चीज पता लगी। ओके सो हियर हम बताते, हाँ, एरिया लेबल, ये लेबल में क्या आएगा हमारा भाई, फीडबैक क्या आना चाहिए, वही आएगा। टेक्स्ट एरिया, नाउ अब हमें करना होता है भाई BR लगाओ, खत्म प्रॉब्लम। हाँ, BR फील्ड सेट। अब एक चीज तो रह गई, अब हमने फॉर्म बना दिया है तो भाई अब उसे सबमिट भी करवाना पड़ेगा। देन राइट हियर सबमिट, देन टाइप इज योर सबमिट, oh no, submit, okay, your form is completed now, then format the document, here shown the preview, the feedback form is ready। देखो सेम है जो हमने पिछली वीडियोस में देखा था, इसलिए फॉर्म देखो ऐसी है, पर हमने इसमें क्या क्या डिफरेंट थिंग यूज करी है जो हमने आज पढ़ा है। एरिया लेबल, एरिया रिक्वायर्ड, सो हम चीजों को ध्यान देना है।
So here you can also see content the survey form. Oh, so here accessible feedback form title है हमारा. Feedback form is your H1 heading. Enter your name, email. I am full stack web डेवलपर. हमारा भैया ये मैसेज है. ओके, हो गया. देन सबमिट. हो गया सबमिट फॉर्म. एक्चुअली हमने भी फॉर्म ही किया है. हमें सिर्फ फ्रंट एंड पे ज्यादा अभी कर रहे हैं फोकस. देखो नई चीज पता लगी. अगर हमारा जैसे टेक्स्ट हमारा बड़ा है, then you can also increase the box size. So here just leave it. हो गया ना. हाँ, तो हमारा था फॉर्म. ठीक है, लग गया पता हमें फॉर्म क्या है. अभी हमने कैसे कैसे चीजों को किया. ये हमारी है H1 heading. This is H1 heading. Here, this is your H1 heading. Then this is the button. हमने अभी अभी बनाया जस्ट बटन. ये है बटन. ठीक है. सो हमने कर लिया आज का. अब हम करते हैं. एक्चुअली अब हो गया. This now great work. Great work. You have learned. You have learned how to make what? How to make the form accessible and inclusive in the text lecture. In the next lecture, we will explore how to style your forms using CSS for a polished and the professional look. See you soon. See you in the next lecture. Thank you.